Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to this series of lecture on structural dynamics. So, as far as the introduction is concerned, we have done the introduction part of this course of structural dynamics, and then we discussed the dynamic environment, right? So, within the dynamic environment, we studied that most of the structure that will be studying would be single degree of freedom system. So, in today's lecture, our main emphasis is on single degree of freedom system, and we would be inshallah studying what are the essential characteristics of a single degree of freedom system, and then we'll see the analytical model that we'll be studying most of the time in structural dynamics. Analytical model that is representative of the single degree of freedom system. Right, so let's start. So the essential physical properties of any linearly elastic system subjected to dynamic loading are. So as you can see here in this particular slide, that I have emphasized on linearly elastic systems. So as these terms are comparatively new term, or at least these are the terms that you have studied in your undergraduate programs, and since completion of the undergraduate program, you haven't much discussed or you haven't much read about this linear elastic system. So I would be inshallah discussing this linearly elastic system as well. So but initially I would be emphasizing on the essential characteristics of a single degree of freedom system, and then we will see that whether this single degree of freedom system is a linearly elastic system or not. But we are considering our system, our analytical model, as the linearly elastic system model, right? So the essential characteristics are, so now most of the time we would be representing our structure as this particular model, right? So this is, as you can see, the elevated water tank being supported by this particular column, and mass is being, most of the mass, as you can see, is being is accumulated at the top of this particular structure, right? So as the overhead water tank is because of the weight of the water, right? So mass is being accumulated at the top, and then there is a certain column, and this column will have a certain role. This mass will have a certain role. As you know that this is the dynamic system, and in dynamics the acceleration plays the most important role. And acceleration is directly dependent on the mass. As you know about the Newton's second law, this force is equal to ma, force is mass times acceleration. So more is the mass, the more will be the acceleration, right? So mass is accumulated at one single place, and then there is a component which is providing the stiffness. So this is the analytical model in the structural dynamics environment. So as you can see that we are representing this particular column to be as a massless springs. So we are assuming that this particular weight of this particular column is massless, and whole of the mass is being accumulated at one single place, and this concept is known as the lumped mass system. So, right? So in our normal civil engineering structure, you can observe certain structure that have this characteristic, that the mass can be assumed to be accumulated at one single place. And if it does not have that characteristic, then definitely that particular system cannot be analyzed as a single degree of freedom system. Then we'll have to see the multi-degree of freedom system, and then in the later part of our course, we'll be studying the multi-degree of freedom system as well. Definitely the complication would be more there in that particular, in those consideration while considering the multi-degree of freedom system. So what we are assuming right now is that the mass is being accumulated at one single place, right? So it can happen in some situation, right? And then the stiffness is being provided by a massless spring. We would be studying inshallah spring in the next lecture as well, because spring has a very important role in the structural dynamics, because all of the stiffness of our single degree of freedom structure are being represented by spring. So spring, whatever is the properties of the spring, we are saying that those properties are there in the component of the structure that is providing stiffness to our real structures. So in this particular system, right, so we have a mass,
that is being accumulated, that we are assuming to be lumped at one single point. So if you cannot assume your mass to be lumped at one single point, then definitely you cannot assume that your system to be a single degree of freedom system. In any case, if you can assume through your intuition, through your understanding of the structure, if you can assume that you can lump your mass at one single plane, then and only then you can assume your system to be a single degree of freedom system. Then another essential characteristic of this system is the elastic properties. So whatever is are the elastic properties of the system, we are assuming that all those elastic properties are being accumulated in this particular component of your model, of your system, right? And now in this particular case, this is the column that is providing the elastic properties. And what are those elastic properties? We will be discussing that, right? And into the analytical model, we are saying that these elastic properties are being provided, are being contributed, or you can say by a massless spring, right? And then moving ahead, this is a new terminology, damping. That's why I've showed it by a red arrow. So this damping is something new, so don't worry about that. We will be discussing this damping inshallah in this lecture as well, and then we'll be discussing this damping, because this has a very strong influence on our real structure, be it a single degree of freedom system or it a multi-degree of freedom system. So but most of the real structure are damped structures. So what is damping? We'll be discussing that. We'll try to understand the term damping, and then we'll see the influence of the damping on our real structure. So this is something new. You have heard about, definitely you have heard about the mass, you have heard about the elastic property, then there is a new concept, damping. So as you can see in this particular slide, we have 2 or 3 new terms. We have used this linearly elastic system, so we will be discussing this. We will try to understand, we will try to discuss this linearly elastic system, and then inshallah we will be discussing the damping. Okay, what exactly is the damping? So we are continuing our discussion of the linearly elastic system. Okay. So this is a graph showing a non-linear elastic system as well as the linear elastic system. So as far as the linearity is concerned, if the material follows the Hooke's law, right, and the ratio between the stress and strain is constant, then we can say that then our system is linear. So linearity and elasticity, they are 2 different properties. So in this particular graph, we have written these together. So linearity is something else and elasticity is something else. Linearity means ये है कि भाई अगर एक मटेरियल पे आप लोड लगा रहे हैं, और जो लोड और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो है, ये लोड और डिफॉर्मेशन का जो आपस में ताल्लुक़ है, वो किसी एक ख़ास प्रोपोर्शनलिटी से बढ़ रहा है। और अगर वो प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, और वो जो उसकी प्रोपोर्शनलिटी है वो लीनियर है, लीनियर तो आप समझते हैं, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and definitely it will have certain slope. It cannot be a horizontal line, so it will have a certain slope, and if you can represent your particular system with this thing, then you can say that this is the linearity. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन आपके लिए कर देता हूँ। वैसे तो मैंने ग्राफ में आपको बता दिया है कि क्या चीज़ है। तो ये अगर हम ले लेते हैं और यहाँ हम कहते हैं कि दिस इज़ द स्ट्रेस एंड दिस इज़ द स्ट्रेन, ठीक है। सो एज सुन एज यू स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, तो देयर इज़, इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट के ऊपर जो एक स्ट्रेस है उससे रेलेवेंट एक स्ट्रेन है, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेस है, उससे रेलेवेंट एक स्ट्रेन है, ठीक है जी। तो अब अगर आप इन 2 पॉइंट को देखते हैं या इन 2 पॉइंट को देखते हैं, इन 2 पॉइंट का ये डिफरेंस आप ले लेते हैं, ये डिफरेंस, ठीक है। तो ये दिस इज द चेंज इन स्ट्रेस, एंड दिस इज द चेंज इन स्ट्रेन फॉर दैट पर्टिकुलर रेंज, ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप इसका रेशो लेंगे तो दिस रेशो वुड बी अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है, जिसको हम स्टिफनेस से टर्म रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो एक चीज़ है ये लिनियरिटी है, ठीक है। अगर इस लिनियरिटी के अंदर रहते आप फोर्स को लगाते हैं, फोर्स को हटाते हैं, और वो फोर्स को हटाने पर सिस्टम अपनी जगह पे, ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये भी इलास्टिसिटी भी है, सिस्टम इज इलास्टिक एज वेल, ठीक है। तो लीनियरिटी इलास्टिक का आप थोड़ा फर्क क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि लीनियरिटी इज द रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, and elasticity is the property of the material through which
by virtue of which it regains its original position. If it does not regain its original position, then we will say it has crossed the elastic limit and certain permanent deformation has occurred, और उस permanent deformation को फिर हम plasticity कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो मॉडल आया है, ये वाले अगर आप इस मॉडल को देख रहे हैं तो दिस इज द लीनियर इलास्टिक मॉडल, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ये ग्रीन लाइन में देख रहे हैं तो इसके अंदर इलास्टिसिटी है बट देयर इज नो लीनियरिटी, ठीक है। ये जो मटेरियल है किसी भी टाइम पे अगर आप इस मटेरियल पे यहाँ से फोर्स हटाएंगे तो इट विल रीगेन इट्स पोजीशन एंड देन विल जॉइन बैक टू जीरो, ठीक है। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो वहाँ यहाँ आप दोबारा आ जाएंगे। तो इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो वो इलास्टिसिटी है बट दिस इज़ नॉन लीनियर इलास्टिक, ठीक है। दिस इज़ लीनियर इलास्टिक। तो मेरे ख्याल में ये ग्राफ से बड़ा इसमें फ़र्क वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि अगर जो रेशो है वो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीनियर लाइन, देन वी वुड से द मटेरियल इज़ लीनियर, एंड देन इफ़ द मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग दैट फोर्स, देन वी वुड say that this is elastic as well, ठीक है। तो सिस्टम कैन बी लीनियर इलास्टिक एंड ए सिस्टम कैन बी नॉन लीनियर इलास्टिक। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप इसके साथ कंपैरिजन में देखेंगे तो ये जो दोनों सिस्टम हैं, ये अगर आप पहला सिस्टम देख रहे हैं तो दिस इज इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक सिस्टम, जिसको इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। एक सर्टन लेवल तक इसके अंदर परफेक्ट इलास्टिसिटी है, परफेक्ट लीनियरिटी है, एंड देन आफ्टर दैट इट हैज़ परफेक्ट प्लास्टिसिटी। तो इस सिस्टम को फिर हम कहते हैं दिस इज द इलास्टोप्लास्टिक सिस्टम, ठीक है। तो जो इसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन थी, ये जो डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन है। अगर आप ये देख रहे हैं कि जो मटेरियल अपनी जगह पे वापस नहीं आ सका और मटेरियल जो है वो इस जगह के ऊपर वापस आया है, ठीक है, ये इस जगह के ऊपर मटेरियल वापस आया। तो फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो इसके अंदर डिफॉर्मेशन थी, ये डिफॉर्मेशन, ये इसके अंदर अब परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये प्लास्टिक रेंज के अंदर चला गया। इसी तरीके से अगर आप इस सिस्टम को देख रहे हैं तो दिस इज़ नॉन लीनियर इन इलास्टिक, ना इसके अंदर लीनियरिटी है ना इसके अंदर इलास्टिसिटी है। तो चार चीज़ें अब आपको सिस्टम ऑल टुगेदर नज़र आ गई हैं। नॉन लीनियर इन इलास्टिक, तो ये जो सिस्टम है ग्रीन वाला, दिस इज़ नॉन लीनियर एज वेल एज इन इलास्टिक। इन कंपैरिजन टू दिस अगर आप ये ब्लू लाइन को देखते हैं तो दिस सिस्टम इज़ इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, या इसको आप कह सकते हैं लीनियर भी है, इलास्टिक भी है इस रेंज के अंदर एंड देन इट्स अ परफेक्टली प्लास्टिक सिस्टम। तो दिस इज़ ये जो हमारी डिस्कशन थी लीनियर इलास्टिक सिस्टम की, मुझे उम्मीद है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले भी से थी इसी लीनियर इलास्टिसिटी की, लीनियरिटी की, इलास्टिसिटी की। तो जो लीनियर इलास्टिक सिस्टम है, वी आर अज्यूमिंग आवर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मोस्ट ऑफ द सिस्टम वुड बी कंसिडरिंग इन आवर इनिशियल पार्ट और द फर्स्ट हाफ जो हमारे जो होगा हाफ ऑफ द कोर्स कंटेंट आप समझ लें, उसके अंदर जो है हम अपने सिस्टम को वो लीनियरली इलास्टिक सिस्टम कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। जो अब जो दूसरी उसके अंदर कन्फ्यूजन आई थी जो हमारे पहले उसमें जो लीनियरली इलास्टिक सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया, अब हम देखते हैं कि डैम्पिंग क्या है। तो डैम्पिंग को जो सबसे आसान इसके अल्फाज में इसकी डेफिनेशन है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। जो वाइब्रेशन जिस एनर्जी की वजह से हो रही है, जो एनर्जी उसको वाइब्रेट कराती है सिस्टम को, वो एनर्जी डिसिपेट होती है, वो किसी प्रोसेस से डिसिपेट होती है, और वो जो प्रोसेस है डिसिपेशन का उसको हम डैम्पिंग कह रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत कलेक्टिव किस्म की एक टर्मिनोलॉजी है जो मुख्तलिफ किस्म के करैक्टरिस्टिक को सिस्टम में, जो डैम्पिंग के जितने भी एनर्जी डिसिपेशन के प्रोसेसेस हो सकते हैं एक सिस्टम में, उसका कलेक्टिव नाम है डैम्पिंग। आप आगे चल के आप देखेंगे तो डैम्पिंग किसी एक सिंगल चीज़ का नाम नहीं है। इसमें विस्कस डैम्पिंग, कूलम डैम्पिंग, जैसे आप जानते हैं अगर फ्रिक्शन हो तो उसकी वजह से, जैसे एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन किसी भी ऑसिलेटरी बॉडी की जो ऑसिलेशन है उसको रिड्यूस करेगी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि डैम्पिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं, एंड इंशाल्लाह आज ही के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डैम्पिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम था जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, जिसमें हमारे पास मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये मास है और ये जो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज थी दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द स्प्रिंग, एंड देन इफ यू हैव थ्रू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और थ्रू इनिशियल वेलोसिटी या बाय सम एक्सटर्नल फोर्स आपने इसके अंदर वाइब्रेशन दी है, ठीक है। और अगर उस वाइब्रेशन को आप उस सिस्टम को हटा देते हैं, मतलब अगर आपने उस फोर्स को हटा दिया तो क्या होगा, सिस्टम कुछ देर ऑसिलेट करेगा एंड देन ग्रेजुअली इट विल कम टू रेस्ट। तो अगर आप ये देखते हैं ये सिस्टम को अगर आपने यहाँ तक जो लाया तो वो यू टाइम था, तो यहाँ से अगर आज सिस्टम ने ऑसिलेशन शुरू की तो ये आप देख रहे हैं कि हर साइकिल के बाद, अल्टरनेट साइकिल के बाद ये अगर आप देखते हैं तो इसकी डिफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है और ग्रेजुअली ये जो है फिर जाके बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और ये स्टैटिक पोजीशन के अंदर आ जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ को मज़ीद थोड़ा सा यहाँ एक्सपेंड करते हैं तो ये यूँ जाके और फिर ये यूँ स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन ख़त्म हो जाती है। तो ये कौन सी इसके अंदर ऐसी खुफिया क़ुव्वतें थीं,
कौन से ऐसे हाथ थे इसके अंदर जिसने इसकी डैम्पिंग को ख़त्म किया। तो वो जितने भी हाथ हैं, वो जितनी भी खुफिया क़ुव्वतें हैं, उसको कलेक्टिव नाम को हम कहते हैं कि ये डैम्पिंग है। अब वो कौन कौन सी क़ुव्वतें हो सकती हैं, वी वुड बी डिस्कसिंग दैट टुडे इंशाल्लाह एज वेल। ठीक है, सो देयर आर सो मैनी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो देयर आर सो मैनी सोर्सेज ऑफ डैम्पिंग एंड डिफरेंट मैकेनिज्म, ना सिर्फ सोर्सेज हैं बल्कि मैकेनिज्म भी होंगे ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन अ स्ट्रक्चर। द सोर्सेज ऑफ डैम्पिंग आर क्लासिफाइड, ब्रॉडली जो इसको क्लासिफाइड किया है वो 2 टाइप्स में किया है। वो कौन कौन सी 2 टाइप हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मटेरियल या इंटरनल डैम्पिंग है। ठीक है, तो जो आप जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं ना, उस एनर्जी की वजह से उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है। जो स्ट्रेन एनर्जी आप डालते हैं, अगर वो स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक मटेरियल है तो वो स्ट्रेन एनर्जी उसको वापस लेकर आ जाती है। और अगर आप ये कहते हैं कि उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ गई तो सर्टन स्ट्रेन एनर्जी वो डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक रेंज के अंदर ले जाने में चली जाती है। और उसके अंदर जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, उसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है या स्ट्रक्चरल जो इंटरनल स्ट्रक्चरल उसकी मैकेनिज़्म है, कंपोजिशन है, वो फिर डिस्टर्ब कर देती है वो स्ट्रेन एनर्जी, और वो एनर्जी फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो सर्टन एनर्जी इज़ बीइंग स्टोर्ड, जो कि उसको वापस लेके आ जाती है, और कुछ एनर्जी उसकी ज़ाया हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और अदर फॉर्म। सो इट इज़ यूजली काज बाय द विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, विस्को इलास्टिसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी मटेरियल की थिकनेस की वजह से जो होती है। जैसे अगर आपने दो आप फ्लूइड ले लें, वन इज़ लेट्स सपोज मिल्क दी एंड द अदर इज़ हनी, शहद है। ठीक है, तो दूध और शहद में अगर आप दूध में कोई चीज़ को डुबोएंगे तो उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, उसको जो फ्लो की रेजिस्टेंस है ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचने में बहुत कम रेजिस्टेंस मिल रही होगी और बहुत सुन पहुंच जाएगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप उसको किसी थिक या विस्कस मटेरियल में डालते हैं, लेट्स सपोज शहद में अगर आप एक बॉल को डाल देते हैं जो कि एल्यूमिनियम की स्टील की बॉल है, तो इट विल वेरी ग्रेजुअली सेटल डाउन, बिकॉज कि उसका जो मटेरियल प्रॉपर्टी है वो उसको रेजिस्ट कर रही है उसकी मूवमेंट को। ठीक है, तो ये जो मटेरियल या इंटरनल डैम्पिंग है वो उस मटेरियल की अपनी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसका मॉलिक्यूलर उसका स्ट्रक्चर है, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं जिस तरीके से वो, अगर आपको पता है सॉलिड है तो बड़ी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर फोर्सेस होती हैं, ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर लिक्विड है तो उससे कम हो जाती हैं, और गैसेज होती हैं तो उसके अंदर मटेरियल के अंदर उससे कम फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ये तो जो आपका हमने मैटर को पढ़ा हुआ है उसकी सारी वो है। तो ये जो उसके अपने अंदर की जो करैक्टरिस्टिक हैं जो उस एनर्जी को वेस्ट करवाती हैं। ठीक है, आपको फोर्स क्यों लगाना पड़ती है बॉडी पे? ठीक है, या फोर्स आप लगाते हैं तो बॉडी को डिफॉर्मेशन के लिए आपको एक्सेसिव फोर्स लगाना पड़ती है। उसकी वजह क्या है कि जो मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल बॉन्डिंग है, वो उसको रेजिस्टेंस देती है, और जब तक आप फोर्स लगा रहे हैं वो रेजिस्टेंस मिलती जा रही। जैसे ही आपकी फोर्स ओवरकम कर जाती है उस रेजिस्टेंस को, तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है, और वो बाद में डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये मैंने एक वीडियो है तो कोर्टेसी मैंने लिंक दिया है, इट्स नॉट माय ओन वीडियो, सो विद द कर्टेसी ऑफ दिस लिंक यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब एज वेल। तो ये वीडियो हम देखते हैं, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, ये मैं साउंड इसकी बंद करता हूँ। ये सॉलिड एल्यूमिनियम है वर्सेस डुओ सेल फोम, तो 2 चीज़ों के ऊपर ये लोड गिरा रहा है, 4.4 पाउंड 2 kg मास ड्रॉप फ्रॉम 10 फीट। तो देखिए आपने इस पर्टिकुलर जो मॉडल था आपका डूरा फोम जो था, ये जो फोम था इसने किस कदर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली। ऑन दी कॉन्ट्ररी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, और इसके अंदर फिर क्या होगा, ये जो था ये दोबारा से जंप करेगा। ठीक है, तो नियरली ऑल दी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द डुओ सेल ने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और कोई इसके अंदर देखे रिबाउंड नहीं किया। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप इसको देखेंगे तो सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक काजेज द मास टू बाउंस अप्रॉक्सीमेटली 3.5 फीट, 3.5 फीट जो है वो मास रिबाउंड हुआ है। ठीक है, ये जाके ये दूसरी दफ़ा आके इसके ऊपर गिरा। तो ये अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल इसने सारी की सारी इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो ये वो मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब करता है और कितना उसको रिपेल करके वापस फेंक देता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ से इस वीडियो से आपको थोड़ा अंदाज़ा हुआ होगा कि मटेरियल या इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ जो है डुओ सेल फोम जो है मेक एक्सेलेंट एनर्जी एब्जॉर्बर बिकॉज देयर क्रश स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग रिलेटिव डेंसिटी। जो उसकी जो फोम की डेंसिटीज़ हैं उसकी मदद से आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ी सी वीडियो मैंने दिखाई थी सो दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल डैम्पिंग जो है वो आपको अच्छी तरीके से नज़र आ सके। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द क्रिएटर ऑफ दिस वीडियो
जो मैंने उनके इसलिए इनको लिंक दिया है. दिस इज़ नथिंग आई एम क्लेमिंग टू दिस वीडियो आई हैव टेकन फ्रॉम द यूट्यूब जस्ट फॉर द मेकिंग इट ईजी टू मेक दिस कंसेप्ट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो लेट्स मूव. अब ये तो मटेरियल और इंटरनल डैम्पिंग होगी. हम दूसरी टाइप की डैम्पिंग को देखते हैं, तो वो भी होगी नॉन मटेरियल डैम्पिंग. ज़ाहिर है जो दो ब्रॉड हमने बताई है, एक अगर मटेरियल होगी तो दूसरी नॉन मटेरियल ही होगी. ठीक है. तो मटेरियल या इंटरनल डैम्पिंग हमने देख ली. अब नॉन मटेरियल या एक्सटर्नल डैम्पिंग को हम देख लेते हैं कि वेयर एज नॉन मटेरियल डैम्पिंग इज काज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज. अब ये एक्सटर्नल फोर्सेज सच एज फ्रिक्शन एट द कनेक्शन ऑफ द मेंबर. जो मेंबर के कनेक्शन हैं, बोल्टेड जॉइंट्स हैं, वेल्डेड जॉइंट्स हैं, वो भी फ्रिक्शन देते हैं. ठीक है. आर एट द सपोर्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, पिन आपने जॉइंट लगाया हुआ है. एंड फ्लूइड डैम्पिंग काज बाय द सराउंडिंग. जिस चीज़ में आपका स्ट्रक्चर वाइब्रेट कर रहा है, अगर वो एयर में वाइब्रेट कर रहा है तो दैट वुड बी प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस टू योर वाइब्रेशन. एंड इफ़ योर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज़ इन वाटर, सो जो फिर वाटर के अंदर जो है वहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल सकती है. और अगर वो सॉइल में है तो सॉइल उसकी एनर्जी को काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है. अगर आपने जैसे एक पाइल ने मूव करना है सॉइल के अंदर, तो सॉइल जो सराउंडिंग सॉइल है वो दैट वुड बी प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू द वाइब्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइल. ठीक है. तो ये जो मिल रही है, जो कि वाइब्रेशन को डिसिपेट कर रही हैं, एनर्जी को डिसिपेट कर रही हैं, दीज ऑल सोर्सेज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज. ऑन दी कॉन्ट्री, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था वो मटेरियल की अपनी अंदर की प्रॉपर्टीज थी जो कि उसको कर रही थी. तो ये दो ब्रॉड इसकी वो है. इसका भी हम देख लेते हैं. इस पर भी एक छोटी सी वो है कि किस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन ने जो है इसकी वो करेगी. यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये इलास्टिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है. ये वीडियो एनिमेशन इज ऑल्सो courtesy of the YouTube. I have provided the link at the bottom. You can watch this animation. And this is very excellent animation. I am very thankful to the creator of this particular animation. ठीक है. I am reusing this for the understanding of you people. तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द इलास्टिक एनर्जी. एंड देन देयर इज़ अ फ्रिक्शन एज वेल बिकॉज ऑफ द, जो भी अगर ये वुड के ऊपर है, ये ब्लॉक अगर कंक्रीट के ऊपर है, तो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द कंक्रीट दैट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज मूविंग ऑन. ठीक है. तो ये जो उसको फ्रिक्शन दे रहा है, इसकी वजह से देखें किस तरीके से वाइब्रेशन जो है वो आपकी डिसिपेट होती है. तो अगर आप ये जो कर्व देखेंगे, इसकी जितनी भी वाइब्रेशन है, ये ग्राफ अगर आप देख रहे हैं जो साइन वेव इसके अंदर बन रही है, दीज वेव्स आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग. इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता चला जा रहा है ऑन दी. अगर इसके मुकाबले अगर आप ये जो बार भी देख रहे हैं तो इस बार को भी आप देख रहे हैं कि जो उसकी हाइट थी वो एनर्जी के लिहाज से रिड्यूस, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो फ्रिक्शन में सारी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है. काइनेटिक एनर्जी जो है इलास्टिक एनर्जी के ज़रिए से ये इस तरीके से एक दूसरे के कन्वर्जन में डिसिपेट हो रही है थ्रू फ्रिक्शन. ठीक है. तो दिस इज़ द प्राइम एग्जांपल ऑफ द ईजीएस्ट फॉर्म आप कह लें फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल डैम्पिंग. तो अब आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि डैम्पिंग क्या चीज़ है. तो कोई भी सिस्टम जब ऑसिलेट करता है, एक नेचुरल इंट्यूशन है. मेरे ख्याल में हम सब इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, हम सब इस चीज़ को देख सकते हैं, अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में वाइब्रेशन आई है और हमारे जो नेचुरल सराउंडिंग है उसमें वो वाइब्रेशन को उसको डिसिपेट करते हैं. और वो जो अब वाइब्रेशन का, इस दो स्लाइड को पढ़ लेने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वो वाइब्रेशन डिसिपेशन है वो इट्स आइदर फ्रॉम द इंटरनल मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक or from the external sources, and these external sources can be surrounding fluid, this can be friction, this can be liquid, this can be soil. ठीक है. तो ये दो तरह की डैम्पिंग होगी. तो डैम्पिंग का कंसेप्ट होपफुली आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, क्योंकि डैम्पिंग पर हमने आगे इंशाल्लाह चल के बहुत ज़्यादा और भी डिस्कशन करनी है. यहाँ जो डैम्पिंग की एक इनिशियल फील है, एक इनिशियल लुक है, वो मैं देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो डैम्पिंग का एक सुनते ही एक थोड़ा सा वो लगा था कि यार ये क्या चीज़ है. ठीक है. तो वो चीज़ थोड़ी सी निकल जाए और फिर हम आस्ता आस्ता जैसे आप देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो आप ये डैम्पिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे. ठीक है. अब ये जो दो टाइप की हमने डैम्पिंग को पढ़ा, दो स्लाइड लास्ट 2 स्लाइड्स में देखा है, तो वहाँ यहाँ आके मैंने इसको एक फ़िगर मुझे मिली थी तो मैंने इसको कलेक्टिवली फ़िगर दिखा दी है. ठीक है. तो यहाँ जो एयर इस पर्टिकुलर सिस्टम को एयर फ्लूइड डैम्पिंग प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. ये स्टील जो था, ये जो हमारे पास ये खंबा है, जो पोल है, ये स्टील का है, तो ये मटेरियल डैम्पिंग प्रोवाइड कर रही है. अब दिस स्टील पोल इज़ बीइंग कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड देन दिस प्लेटफॉर्म का ये जो हमारे पास कनेक्शन था वो जॉइंट कूलम फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. जो जॉइंट है वो कूलम फ्रिक्शन, जो रेजिस्टेंस होती है कूलम फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं. एंड देन इफ़ यू आर गोइंग फर्दर डाउन देन यू कैन सी जो कंक्रीट है, ये मटेरियल कंक्रीट का बना हुआ है, मटेरियल जो है वो कंक्रीट है, तो ये भी मटेरियल इंटरनल डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहा है. तो अगर आप इन तमाम डैम्पिंग को देखेंगे, यहाँ वाटर जो है फ्लूइड डैम्पिंग कर रहा है. ठीक है. यहाँ सरफेस फ्रिक्शन है और यहाँ जो थी वो सॉइल है.
तो जितनी जो हमने दो सारी चीज़ें पढ़ी थी वो एक इस पर्टिकुलर हमारे जो फिगर थी इसके अंदर कलेक्टिवली नज़र आ रही हैं, और हम इस पर यकीन ला सकते हैं कि यस, क्योंकि मैंने आप कहीं ऐसा ना फील कर रहा हूँ कि अभी ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती। तो इस स्ट्रक्चर को देख करके आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में तमाम तरह की जो हमने फ्लूट की, ये डैम्पिंग की, हमने एग्जाम को पढ़ा है, जो चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं डैम्पिंग में वो यहाँ दिखाई है। तो होपफुली आपको इससे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी वाइब्रेशन की एनर्जी को डिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज़ कर दें तो मैकेनिज्म और सोर्सेज ऑफ डैम्पिंग जो है वो क्या हो गई, सबसे पहले मटेरियल या इंटरनल डैम्पिंग हो गई। जैसे अगर मटेरियल स्टील का है, कंक्रीट का है, वुड का है, तो एनी मटेरियल जिस चीज़ का भी वो बना हुआ है दैट विल प्रोवाइड द डैम्पिंग। और वो क्यों डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा? बिकॉज उसके इंटरनल जो मालिक्यूलर बॉन्डिंग है, मालिक्यूलर फोर्सेज हैं, दैट वुड बी रेजिस्टिंग द एक्सटर्नल फोर्सेज फॉर वो जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन लाने की या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। वो हम सब जानते हैं कि वो जो इंटरनल मालिक्यूलर बॉन्डिंग है वो उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, एंड देन देयर इज़ ए नॉन मटेरियल और एक्सटर्नल डैम्पिंग, जिसको हमने देख लिया कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ माइक्रो क्रैक्स है। ठीक है, क्रैक्स जो बन रहे हैं उसके अंदर आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आपने एनर्जी लगाई, क्रैक खुला, फिर दूसरे उसमें एनर्जी जैसे जैसे वाइब्रेशन कम होती है, एम्पलीट्यूड एनर्जी जो है वो क्रैक्स बंद हो रहा है, खुल रहा है, तो ये इसकी एनर्जी को यहाँ से हीट एनर्जी की फॉर्म में अब्जॉर्ब करेगा और हीट की फॉर्म में वो एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, या फिर फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेयर लाइक एयर, वाटर, जॉइंट फ्रिक्शन। तो दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ डैम्पिंग दैट यू विल बी इनकाउंटरिंग। और फिर आगे चल के हम देखेंगे एक टाइप की जो कूलम डैम्पिंग है, विस्कस डैम्पिंग है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो एग्जाम है उसको हम देखते हुए चलेंगे किस तरीके से ये डैम्पिंग जो है कंट्रीब्यूट करती हैं एनर्जी डिसिपेशन में। ठीक है, तो मूविंग एड आवर डिस्कशन टू द सिंगल डिग्री, क्योंकि हमने आपको अगर याद होगा तो स्टार्ट अपना किया था, हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम को सिस्टम को समझना चाह रहे थे। उसके अंदर फिर हमने लीनियर इलास्टिक की बात कर ली थी, इसलिए हमने कुछ वक्त उस पर लगाया, और देन फिर उसके अंदर हमने डैम्पिंग की बात की और हमने कुछ वक्त डैम्पिंग को लगाया। तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, सो कंसीडर दिस एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बिकॉज दिस पर्टिकुलर ये जो मास और स्प्रिंग है या ये जो और एलिवेटेड वाटर टैंक है, तो ये अगर आप देख सकते हैं तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो दिस इज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, दिस कैन नॉट मूव इन दी वाई डायरेक्शन, दिस कैन नॉट मूव इन दी जेड डायरेक्शन। तो अगर इसने मूव भी करना है, ये मतलब अगर ये भी मूव कर रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन है। एट अ टाइम इट विल मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर ये आप समझ लें यूं मूव कर रहा है तो एट अ टाइम ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन जो डिफॉर्मेशन होगी उसकी 1 डिग्री पर होगी, क्योंकि सारा के सारा मास एक जगह पे लंप्ड है ना, तो फिर इसलिए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। ऑन दी कंट्री अगर आप इस चीज़ को मास को एक जगह पे लंप्ड नहीं समझते, ठीक है, और आप कहते हैं, क्योंकि ये हमारी अजम्पशन है, इन रियल स्ट्रक्चर मास आइडियली लंप नहीं होता एक ही जगह पे, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन हम ये अपनी अजम्पशन कर रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसा काम कर सकें जहां मास को अज्यूम कर सकें एक जगह के ऊपर लंप, तो फिर हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि आप कहते हैं कि भाई ये कॉलम इस टाइप का था, ठीक है, काफ़ी मोटा कॉलम है जिसके आप मास को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ये आप समझ लीजिए ये एलिवेटेड वाटर टैंक है और ये समथिंग या, तो हर जगह के ऊपर मास है ना, इसका मतलब ये है कि हर मास यहाँ से डिस्प्लेस होगा। अगर आप इसकी डिस्प्लेस पोजीशन देखते हैं तो इसकी डिस्प्लेस पोजीशन मैं अगर बहुत एग्जेजरेटेड फॉर्म में आपको दिखा दूँ तो वो ये इस किस्म की हो जाती है। ठीक है, बहुत एग्जेजरेटेड फॉर्म है, तो डू नॉट टेक इट टू बी सीरियसली कि इतना होगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप ये नहीं समझ रहे कि मास लंप नहीं है एक जगह पे, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रक्चर में नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि जहाँ जहाँ मास है हर जगह का मास जो होगा वो डिफॉर्म होगा, हर जगह का मास डिफॉर्म होगा, तो हर जगह के ऊपर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो ये इसके अंदर इन्फिनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर जब इतने इन्फिनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, तो अगर आपने डायनेमिक एनवायरनमेंट का मेरा लेक्चर आपने लास्ट देखा है, तो फिर उसके अंदर आपने देखा था फिर हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस की तरफ चले गए। तो चूंकि हमने मैनुअल एनालिसिस करनी है, तो वी आर अज्यूमिंग कि भाई ये जो पर्टिकुलर ये सारा के सारा मास था जो कि यहाँ था, ये सारा मास हम कह रहे हैं कि भाई ये मास जो है इन कंपैरिजन टू दिस मास, इन कंपैरिजन अगर आप इसको मास m1 कह लें और इसको मास m2 कह लें, तो हम ये कह रहे हैं कि मास m1 इज़ मैनी टाइम ग्रेटर देन मास m2। ठीक है, इतना ग्रेटर है कि यू कैन निगलेक्ट द मास m2 वाइल कंपेयरिंग विद द मास m1, देन यू कैन अज्यूम दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो ये सिंगल डिग्री और मल्टी डिग्री को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये कोई भी सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम जो है, इट कैन नेवर बी अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, बट वी अज्यूम
ओनली इन दैट केस कि अगर आपका जो ये स्टिफनेस प्रोवाइड जो कर रहा है इसका जो मास है वो इन कंपैरिजन विद द एक्चुअल मास, और जो आपका जैसे ऊपर का या स्लैब है आपकी, तो स्लैब पर आपका मास ज़्यादा एक्युमुलेटेड होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द कॉलम। कॉलम आपके पास 9 इंचज़ का विड्थ है और 6 इंचज़ की वो है। ऑन द कंट्रेरी अगर आप स्लैब को देखते हैं तो वो जनासा 15 फीट की है या 16 फीट की है, तो स्लैब का जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा। अगर स्लैब इज़ बीइंग सपोर्टेड ऑन अ सिंगल कॉलम देन यू कैन एज्यूम कि भाई दिस कॉलम इज़ मासलेस एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द स्लैब, ठीक है। तब फिर जाके आप इस किस्म के एजम्पशन कर सकते हैं। लेकिन जब एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा तो उसके अंदर आपके पास केस इस किस्म का होगा। लेकिन अगर आप तमाम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करेंगे देन योर लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड देन यू विल हैव टू गो टू दी कंप्यूटर्स, और वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हैं वो उसका फिर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो इसका अब हम इसका एनालिटिकल मॉडल बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस वी आर कंसिडरिंग एज टू बी अ रियल मॉडल। हम ये कह रहे हैं कि ये एलिवेटेड वाटर टैंक है, ये उसका कॉलम है और ये टैंक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस जो हमारा एलिवेटेड मॉडल, एलिवेटेड वाटर टैंक का रियल मॉडल है, इसको हम अपने एनालिटिकल मॉडल जो कि हम स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स के अंदर रिपीटेडली इस्तेमाल करेंगे, बारहा इस्तेमाल करेंगे और कई बार इस्तेमाल करेंगे, वो हम देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ये जो मास है, इस मास को मैंने इस मॉडल में इस ब्लॉक से m के साथ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एंड देन ब्लॉक इज कंस्ट्रेंड बाय रोलर, अगर आप ये देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो इसकी कंस्ट्रेंट थी वो ये थी, ये जो कंस्ट्रेंट थी, इस कंस्ट्रेंट को हमने कहा कि रोलर से। अब ये कंस्ट्रेंट जब आप इसको एनालॉजी कर रहे हैं, इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर आपने कंस्ट्रेंट वैसी लेनी होगी। अब ये कंस्ट्रेंट कैसी है? ये कंस्ट्रेंट हमने कहा कि दिस कंस्ट्रेंट इज प्रोवाइडिंग और इस फ्रीडम जो दे रही है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रही है, कि सिंगल डिग्री, कि एक ही डायरेक्शन में ये फ्रीडम प्रोवाइड कर रही है दिस कंस्ट्रेंट। तो आपको फिर यहाँ जो अपना मॉडल है उस मॉडल में भी हम ऐसी कंस्ट्रेंट लेंगे जिसके अंदर ये सिंगल डी। तो हम ये रोलर लगा रहे हैं, इस रोलर की मदद से ये होगा, ये जो गाड़ी होगी वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो ब्लॉक होगा इसके ऊपर एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकेगा, ठीक है। तो फिर ये रिस्ट्रेंट होगा इसकी इस डायरेक्शन में। तो रिस्ट्रेंट का हमने यहाँ वो लगाया कि जो ब्लॉक इज कंस्ट्रेंड बाय रोलर सो दैट इट कैन मूव ओनली इन सिंपल ट्रांसलेशन। जो सिंपल ट्रांसलेशन है उसके अंदर मूव कर सकता है। एंड देन वी आर सेइंग कि दस द सिंगल डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट यू टी कंप्लीटली डिफाइंड इस पोजीशन। तो अगर आपने इसकी जो मोमेंट की किसी भी लम्हे यू टी टाइम है ना, किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर अगर आपने इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए है तो फिर वो ये जो कोऑर्डिनेट है, सिंगल कोऑर्डिनेट कैन स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई दी वाई डायरेक्शन। लेट्स सपोज अगर आप इसको ये ले लें कि जहाँ हमें 2 डायरेक्शन में स्पेसिफाई करना पड़ती है, तो ये जैसे हम बनाते हैं, तो अगर मैं इस पॉइंट को स्पेसिफाई करना चाहूँ तो फिर आपको उसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या चाहिए होगा? यू नीड द डिस्टेंस x, यू नीड द डिस्टेंस y, ठीक है, टू स्पेसिफाई दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। और फिर हम इसको कहते हैं कि दिस इज x y। तो ये 2 को आपको कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ जो मोमेंट है, इसकी मोमेंट हमने ऐसे इसकी ट्रांसलेट की है कि सिंगल ट्रांसलेशन है, तो ओनली वन जो है यू टी कैन कंप्लीटली डिफाइंड इट्स पोजीशन एट एनी टाइम इंस्टेंट, ठीक है। और जो इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी थी जो कि आपका ये कॉलम प्रोवाइड कर रहा था, वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को हमने एक स्प्रिंग लगा के कर दिया, और जितनी स्टिफनेस यहाँ इस कॉलम की थी के, हमने उतने ही स्टिफनेस का एक स्प्रिंग लगा दिया अपने मास स्प्रिंग डेपर सिस्टम में, और हमने कहा कि ये के हैज़ द सेम स्टिफनेस एज दिस वन, ठीक है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को भी हमने मॉडल में कर लिया, ठीक है। आज जो एनर्जी डिसिपेशन की थी, एनर्जी लॉस आर रिप्रेजेंटेड बाय द डैम्पर सी, ठीक है। ये डैशपॉट कहलाता है, ये डैम्पर सी है। ये भी आगे चल के आप देखेंगे इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो इसके अंदर डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक थी उसको भी हमने एक चीज़ से कर दिया, सी के साथ, ठीक है। ये अमूमन ऐसे ही होता है जैसे आपके पास पिस्टन होते हैं, जैसे आपके पास ये डोर क्लोजर होते हैं, इसके अंदर एक डैम्पर होता है जो कि आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जिसकी जो एनर्जी इसके टेस्ट किए जाते हैं कि जो डैम्पिंग कैलकुलेट करने के लिए, तो जितनी भी इसकी डैम्पिंग आएगी वो हम आगे चल के इसके देखेंगे कि टेस्टिंग कैसे करते हैं, डैम्पिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो अब मैंने कहा ना कि हम डायनेमिक इन्वायरमेंट में आ गए हैं। जब आपने डायनेमिक के अंदर जंप लगा दिया है तो ये विल बी, आपको हर दिन एक इंशाल्लाह नए कंसेप्ट मिल रहे होंगे और नई नई जहतें इंशाल्लाह आपके लिए खुलेंगी। तो जो भी इसके अंदर डैम्पिंग की कैरेक्टरिस्टिक थी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय दिस सी। तो स्टिफनेसेस की सारी चीज़ें हम स्प्रिंग से कर रहे हैं, मास को हम ब्लॉक से कर दिया, जो कंस्ट्रेंट थी वो हमने इससे कर दिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी आपके पास हो गई।
ठीक है। और जो एक्सटर्नल डायनेमिक लोडिंग थी, अगर कोई लोड इस पर लगा हुआ है और कैसी मशीनरी लगी हुई है जो इसके ऊपर कंटिन्यूस डायनेमिक लोड दे रही है, तो फिर उसको हम ये पीटी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पीटी का मतलब ये है कि दिस फोर्स इज़ डिपेंडेंट अपॉन टाइम। दिस फोर्स अगर ये एक टाइम के ऊपर एम्पलीट्यूड पे जा रही है, स्लो हो रही है, फिर नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे जा रही है, तो ये जो है जो एक्सटर्नल फोर्स लगती है वो आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। वो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अर्थक्वेक है और ये जनाब ब्लास्ट है या फिर हार्मोनिक फोर्सेज हैं। तो जितने भी टाइप की फोर्सेज हैं हम अपने एनालिटिकल मॉडल में विल बी रिप्रेजेंटिंग दैट फोर्स बाय पी टी। ठीक है। तो दिस इज आवर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एंड ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, तो दिस इज द मॉडल, एनालिटिकल मॉडल दैट वुड बी कंसिडरिंग इन आवर स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो मूविंग अहेड, ये वही मॉडल था जो कि वहाँ था, वो हमने यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है। अब इस मॉडल के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको जब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्सेज होंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है ये इसको स्टिफनेस प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो स्टिफनेस स्प्रिंग फोर्सेज को हम कह रहे हैं एफ एस टाइम टी। अब चूंकि डायनेमिक सिस्टम है तो एवरी फोर्स विल बी टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, ये इंटरनल इसकी रिएक्शन है। जो डैम्पिंग फोर्सेज हैं वो ये आपके पास जो है वो ये डैम्पिंग फोर्सेज आ गए एफ डी के साथ हम कह रहे हैं, और ये भी अगर आप देख रहे हैं टाइम डिपेंडेंट है। एंड देन पी टी तो आपके पास लग रही थी, और ये जो मास था, मास जो है वो आपका इनर्शियल फोर्सेज देगा, और वो इनर्शियल फोर्सेज को हम आई से कर रहे हैं। तो एफ आई इज द इनर्शियल फोर्स, एफ डी इज द डैम्पिंग फोर्सेज एंड एफ एस आर द स्टिफनेस फोर्सेज। ठीक है, सो द फोर्सेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर द अप्लाइड लोड पी टी, दिस वन। ठीक है, नंबर वन, इसको अगर वन लिखना है तो आप वन लिख दीजिए, नंबर वन अप्लाइड लोड। थ्री रेजिस्टिंग फोर्सेज, अब इस एक्सटर्नल फोर्स को तीन रेजिस्टिंग फोर्सेज कर रही हैं, जिसमें नंबर वन इज द इनर्शियल फोर्स, ये आ गई, इसको फोर्स नंबर टू कहते हैं इनर्शियल फोर्स। ठीक है, एंड देन द डैम्पिंग फोर्स, ये आ गई, इसको आप नंबर थ्री कह दें। ठीक है, एंड देन लास्टली यू हैव द स्प्रिंग फोर्सेज, जो कि आपके पास ये आ गई। तो ये चार तरह की फोर्सेज आई। वन इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड ऑल थ्री जो हैं, अदर थ्री जो हैं वो दे आर दी इंटरनल फोर्सेज दैट वुड बी प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। अगर इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होगी, चूंकि आप जब फोर्स लगाएंगे तो वाइब्रेशन विल बी इंड्यूस। अगर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो फिर आप सब जानते हैं कि देयर वुड बी कोई इसके अंदर इंटरनल फोर्सेज एक्साइट ही नहीं होंगी। लेकिन जो हमारा डायनेमिक सिस्टम है तो उसके अंदर भी एक इक्विलिब्रियम आता है जिसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट उसमें। ठीक है, ये वो चीज़ आ गए हैं। ये जो साहब उछलते हुए आए हैं ये डी अलम्बर्ट साहब हैं। ठीक है, डी अलम्बर्ट साहब ने अपना एक प्रिंसिपल दिया है डायनेमिक के अंदर। वो क्या प्रिंसिपल था उसको हम देते हैं ये, क्या सिस्टम में बी सेट इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बड़ा ये यूजफुल है। बाय एडिंग टू द एक्सटर्नल फोर्सेज, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेज एफ थी, अ fictitious फोर्स दैट इज कॉमनली नॉन एज द इनर्शियल फोर्सेज एम यू। ठीक है, तो अगर आपके पास जिस तरह आप देखते हैं किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो न्यूटन का सेकंड लॉ है कि फोर्स इज मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर एक बॉडी मूवमेंट में है तो फिर वो क्या होगा, हर लम्हे जो है उसकी फोर्स अपने किसी इंटरनल फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, अगर आपने किसी बॉल को किक किया, वो बॉल चलती हुई गई है और बॉल किसी जगह पर रुकती है। ठीक है, बॉल कहीं जाके रुकेगी, तो रुकने का मतलब ये है कि उसका जो एक्सेलरेशन था वो रिड्यूस हो रहा था। अगर एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इंटरनल फोर्स भी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि मास इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो एक मूविंग बॉडी है वो इज इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है इफ़ यू सेट द एक्सटर्नल फोर्स इक्विवेलेंट टू द इंटरनल इनर्शियल फोर्सेज। सो दैट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको आप कहते हैं, और ये प्रिंसिपल वाज एक्सप्लेन बाय द डी एलम्बर्ट्स। तो ये अगर आप देख रहे हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, यू डबल डॉट जो होता है वो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एस दैट इज वेलोसिटी, एंड इफ दैट वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग विद द एक्स या विद द टाइम, तो फिर हम कहते हैं कि वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है तो ऑल द वेरिएशन वुड बी बेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, तो वो चूँकि वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस या मैकेनिक्स सॉलिड में फिर हम एक्स की डायमेंशन में देख रहे होते हैं, तो यहाँ जो वेरिएशन है वो टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन है। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव है ये दो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। यू इज द डिस्प्लेसमेंट, टू डबल डॉट मीन दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड।
अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ये तो डी एलम्बर्ट साहब ने बताया ना, डी एलम्बर्ट साहब ने बताया कि एक्सटर्नल फोर्सेज हैं और एक्सटर्नल फोर्सेज वुड बी इक्विवेलेंट टू दी इनर्शियल फोर्सेज। अब वो जो इंटरनल फोर्सेज उसके अंदर क्या क्या फोर्सेज आ रही हैं, इन सिंपल अगर एक आपके पास एक बॉडी मूव करती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फोर्सेज होती है। यहाँ जो आपने हमारा सिस्टम था उसके अंदर हमने पर्टिकुलरली देखा कि वी हैड द स्टिफनेस फोर्सेज, वी हैड द डैम्पिंग फोर्सेज, वी हैड द inertial forces as well. So we had 3 internal forces and one external force. तो फिर इसका मतलब ये होगा इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का आपस में इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम है, किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। जो एक्सटर्नल फोर्स होगी किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर वो उसके इंटरनल चीज़ों के बराबर होगी, ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ देख लें, मैं एक वो ले लेता हूँ, स्क्रीन। तो जो नॉर्मली अगर आप ये लेते हैं कि ये आपके पास और ये मैंने मास को लंप कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के किसी तरीके से खींच के यहाँ तक ले आते हैं और फिर इसको रिलीज़ कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये बॉडी वुड मूव इन दिस डायरेक्शन, इसकी ये मूवमेंट होगी, ठीक है, ये मूवमेंट होगी। इस मूवमेंट को जो आपने देखा है कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू दिस थिंग, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज दी, ये जो वाइब्रेशन उसका पाथ है वो इस किस्म का है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर भी इसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर इस डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है और इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसी तरीके से ऑल थ्रू आउट जब तक ये वाइब्रेट करता रहेगा हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो इसकी फोर्स होगी, ये फोर्स इसकी जो इंटरनल कंपोनेंट थे जो कि इनर्शियल फोर्सेस थी, जो कि डैम्पिंग फोर्सेस थी और स्टिफनेस फोर्सेस थी, उनके सम के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इन अकॉर्डेंस विद डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल द इनर्शियल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो कि हम जानते हैं मास टाइम एक्सेलरेशन है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सेलरेशन एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इनर्शियल फोर्सेस विच इज़ टाइम डिपेंडेंट। ये जो चीज़ आपको बता रही है, दिस टेलिंग यू कि दिस फोर्स इज, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ टाइम डिपेंडेंट एंड दैट इज़, जो इनर्शियल फोर्सेज होती हैं वो मास टाइम एक्सेलरेशन से होता है। और यू जो है वो दैट इज़ आल्सो टाइम डिपेंडेंट, हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर यू वेरी कर रहा है, यू बढ़ता जाएगा, एक पीक पे पहुंचेगा, फिर यू घटेगा, मिनिमम पे पहुंचेगा और फिर माइनस की तरफ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन भी इसका एम्पलीट्यूड होगा, इसी तरीके से वेलोसिटी का भी एम्पलीट्यूड होगा, इसी तरीके से उसके डिस्प्लेसमेंट का भी एम्पलीट्यूड होगा। तो एज्यूमिंग अ विस्कस मैकेनिज्म, जो हम डैम्पिंग देख रहे हैं, डैम्पिंग को हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमने मुख्तलिफ टाइम की पढ़ी ना, कूलम की डैम्पिंग को हम अलग कंसीडर करना पड़ेगी हमें, और जो मटेरियल डैम्पिंग है उसको अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो सारी की सारी डैम्पिंग है, उस डैम्पिंग को अगर हम विस्कस डैम्पिंग के साथ रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर के अंदर डैम्पिंग थी दैट डैम्पिंग वाज कंट्रीब्यूटेड बाय सो मेनी फैक्टर। सो अब हम यहाँ यूज़ूम कर रहे हैं कि वो जितने भी फैक्टर थे वो विस्कस थे, तो डैम्पिंग जो थी उसके अंदर विस्कस डैम्पिंग है। तो ये एजम्पशन हमारे करना पड़ती है। आगे चल के हम देखेंगे कि हम रियल जो डैम्पिंग की टाइप हैं उसको भी हम देखेंगे कि अगर हम विस्कस डैम्पिंग ना ले रहे हों, कूलम डैम्पिंग ले रहे हों या मटेरियल डैम्पिंग ले रहे हों, तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा। तो बट एट दिस इनिशियल स्टेज, क्योंकि जब हम शुरू में चलते हैं तो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए आसान कदम उठाएंगे ना, छोटे छोटे कदम उठाएंगे और फिर हम बड़े कदम उठाएंगे। तो ये छोटे कदम के तौर पर हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि वी आर अज्यूमिंग द डैम्पिंग टू बी विस्कस डैम्पिंग ऑनली। तो अगर विस्कस डैम्पिंग है तो विस्कोसिटी का मतलब ये है कि एक चीज़ मूविंग है और वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है। तो फिर जो विस्कस डैम्पिंग होती है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट सी, जो भी उस मटेरियल के अंदर की डैम्पिंग है, सी टाइम द वेलोसिटी, ठीक है। तो वो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, द डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू द सी टाइम वेलोसिटी। सी इज द डैम्पिंग एंड यू डॉट टी इज द वेलोसिटी। एंड देन द इलास्टिक फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्प्रिंग स्टिफनेस एंड द डिस्प्लेसमेंट। इलास्टिक फोर्सेस को आप तो जानते हैं, स्प्रिंग आपने काफ़ी डिटेल में पहले भी पढ़े हुए हैं कि वो क्या होते हैं। तो वो इलास्टिक फोर्सेस जो हैं आपके पास इस फॉर्म में आ जाते हैं, के एक्स, जिसको आपने नॉर्मली एफ इजिकल टू के एक्स पढ़ा होगा। तो स्टैटिक के अंदर ये के एक्स होता है ना, अगर आपने एक स्प्रिंग को खींच दिया और वहीं रोक लिया तो स्प्रिंग के अंदर फोर्सेज जो है वो के टाइम एक्स है, जितना आपने खींचा है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि स्प्रिंग जो है वो मोमेंट लाइक दिस, उसकी मोमेंट यूं हो रही है ना, स्प्रिंग यूं मूव करता है। तो एक जगह पे स्प्रिंग आपने मैक्सिमम दबा के रखा तो उसके अंदर मैक्सिमम आपने डिस्प्लेसमेंट दी, तो मैक्सिमम उसके अंदर स्टिफनेस फोर्सेज आए, फिर रिलीज़ किया, फिर दबाया, फिर रिलीज़ किया, फिर दबाया। तो ये स्प्रिंग फोर्सेज जो होती हैं वो के यू टी होती हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज़ टाइम डिपेंडेंट, ठीक है।
तो सम कर दिया तमाम जो इंटरनल फोर्सेस थी, इनर्शियल, डैम्पिंग एंड स्टिफनेस फोर्सेस एंड ऑल दीज फोर्सेस वुड बी इक्वल टू पी टी। तो किसी भी टाइम इंस्टेंट यहाँ टी अगर आप 1 सेकंड रखेंगे तो 1 सेकंड के ऊपर जो उसके पास फोर्स थी वो 1 सेकंड के अंदर जो उसके अंदर इनर्शियल फोर्सेस थी, डैम्पिंग थी, स्टिफनेस थी, उसकी इक्वलेंट होंगी। इसी तरीके से अगर आप 5 सेकंड पे लेना चाह रहे हैं, आप 10 पे, 20 पे, 30 पे, तो ये जो टी है दैट इज़ टाइम डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये इस फोर्स को जब इसके इक्वलेंट के हम इक्वल कर देंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एंड आप चल के इसका देखेंगे, इस इक्वेशन का बार बार इस्तेमाल आएगा और बड़ा इस इक्वेशन ने अब हमारा पीछा नहीं छोड़ना। तो इसलिए इस इक्वेशन को यहाँ डेवलप करना और इस तक की अंडरस्टैंडिंग आपकी पैदा हो जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर ऑफ टाइम्स। आपका डायनेमिक्स पे जब तक आपका साथ है, आप डायनेमिक्स को पकड़ के चलना चाह रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो यू कैन नॉट लीव दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन ऑफ मोशन विल फॉलो यू ऑल द टाइम। ठीक है, सो यहाँ तक इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनाइए कि ये क्या है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज क्या होती हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब अगर एक सिस्टम वर्टिकल से मूव कर रहा है तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी होंगी, क्योंकि अभी तक जो हमने सिस्टम किया था वो आपने सवाल आपके जहन में उभरा होगा, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में किया था। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि वेट और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई वी डिडंट इंक्लूडेड दैट इनटू आवर कंसिडरेशन। बट इन if your system is vertically suspended system, in that case the gravity will definitely play its role, and we are considering that influence of gravity in our discussion in this particular slide. So consider the system where the forces of gravity acts in the direction of this displacement. Now the equilibrium of the forces would be, ये वही stiffness forces, ये वही damping forces, ठीक है, ये वही एक्सटर्नल फोर्स, ये वही ट्रांसलेशन आ गई, और ये मास जो था उसका मास की वजह से उसके अंदर वेट आता है, उस वेट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज आई ये वो हमने दिखाई। अब इसकी वजह से जो फोर्सेज आ रही हैं वो क्या आएंगी, वो ये आ जाएंगी। दिस इज़ द डैम्पिंग फोर्सेज, स्टिफनेस फोर्सेज, मास की वजह से इनर्शियल फोर्सेज आई, और उस वेट की वजह से उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेज आ गई, एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल फोर्स पीटी। अब इसका जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। अब अगर आप डाउनवर्ड फोर्सेज और अपवर्ड फोर्सेज को लेते हैं तो डाउनवर्ड फोर्सेज आप देख रहे हैं कि डब्ल्यू भी आ गई है और पीटी भी आ गई है। दिस यूटी इज़ नॉट अ फोर्स, यूटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ये हमने ट्रांसलेशन शो किया है कि ये एक वर्टिकल ट्रांसलेशन में जाएगा। इससे पहले वाला जो सिस्टम था हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन के अंदर जा रहा था, और ये वर्टिकल ट्रांसलेशन में जा रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज इन योर एनालिटिकल मॉडल। ठीक है, इन दैट केस दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो डिस्कसिंग इसको फर्दर को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी वजह से डिफॉर्मेशन क्या आएगी, वेट की वजह से इसके अंदर स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो डेल्टा एस टी इज द स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट काज्ड बाय द वेट डब्ल्यू, एंड यू टी इज द डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्सटर्नल फोर्स पी टी की वजह से आ रही है, उसको हम यू टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यू टी जो है आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट वुड बी द स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट प्लस द डायनेमिक। दो तरह की डिस्प्लेसमेंट आ रही थी, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है द सम ऑफ द स्टैटिक एंड द डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपके पास जो एफ एस होगी, स्टिफनेस फोर्सेज हो जाएंगी, वो के स्टिफनेस आ गई, और ये स्टिफनेस फोर्सेज आ गई, और ये आपके पास डायनेमिक स्टिफनेस आ गई। ये स्टैटिक स्टिफनेस और ये डायनेमिक स्टिफनेस आ गई। ये वो डायनेमिक स्टिफनेस थी जो कि आप पहले अपने मॉडल में कर रहे थे। अब ये वो स्टिफनेस के डेल्टा एस टी वो चीज़ आ गई जो कि उसकी ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से आई थी। ये के यू तो आपने पहले भी स्टडी किया ना, जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था कि वो जो डायनेमिक आपका सिस्टम था उसकी वजह से जो स्टिफनेस थी वो ये थी, लेकिन अब चूंकि ग्रेविटेशनल आ गया तो उसके अंदर के डेल्टा एस टी भी आ गया। ठीक है, तो अब आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों स्टिफनेस की चीज़ें आ गई जो कि ग्रेविटी की वजह से भी आ रही थी, और ये और के चूँकि सेम है, चूँकि स्टिफनेस उसके अंदर सेम ही है ना। अगर आपने स्प्रिंग से सस्पेंड किया हुआ है तब वो स्टिफनेस उसके अंदर सेम ही है। अगर आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम की जो स्टिफनेस है वो है, तो ऐसा नहीं है कि आपने दो अलग अलग स्प्रिंग लगा दिए। अलग अलग स्प्रिंग लगाए हैं तो फिर आपके पास हालांकि अलग स्प्रिंग होगी, वो फिर हम स्प्रिंग इन सीरीज़ और स्प्रिंग इन पैरेलल जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि वी नो कि W इज इक्वल टू के डेल्टा एस टी। ठीक है, तो 10 जो आपकी इक्वेशन बन जाती है वो दिस इज द इनर्शियल, दिस इज द डैम्पिंग, दिस इज द स्टैटिक फोर्स W की वजह से, एंड दिस इज द डायनेमिक स्टिफनेस, एंड दिस इज द टोटल फोर्स। जो आपके पास W थी, इस W की वजह से जो फोर्स थी, W भी एक फोर्स है ना, उस फोर्स का जो है वो के डेल्टा एस टी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि के डेल्टा एस टी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, यहाँ
तो ये आपके पास आज के लेक्चर में मेरे ख्याल में अगर आप इस नुक्ते को समझ लेते हैं कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है और किस तरीके से हम अपने रियल मॉडल को एनालिटिकल मॉडल में कर सकते हैं और किस तरीके से जो हमारे रियल मॉडल के रियल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं उसको एनालिटिकल मॉडल के साथ मैच करा सकते हैं, मास को, रिस्ट्रेंट को और उसकी स्प्रिंग्स को, स्टिफनेस को, उसकी डैम्पिंग को। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्प्रिंग और अनडैम्ड सिस्टम को देखेंगे और आपके जो इंशाल्लाह ये प्यास है डायनामिक्स की वो बेहतर होगी और वो बुझेगी और आपकी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आपका इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू इन